محترم ناظرین السلام علیکم۔ روشن ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین پر لعنت کرے۔ دریافت کیا گیا کہ کوئی اپنے والدین پر کس طرح لعنت کرتا ہے؟ فرمایا کہ آدمی دوسرے کے والد کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ اور اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں پر۔ شب قدر و جمعۃ الوداع کا متحدہ ضلع میں جوش و عقیدت کے ساتھ اہتمام، مساجد میں روح پرور منظر و خصوصی دعاؤں کا اہتمام۔ ریاستی وزیر ہریش راؤ کی ضلع کو آمد، ریاستی اسمبلی اسپیکر کے ہمراہ بانسواڑہ میں نرسنگ کالج، لفٹ اریگیشن و دیگر ترقیاتی کاموں کا کیا آغاز۔ شہر نظام آباد کے مختلف مساجد میں نماز عیدین کے اوقات کا اعلان، موسم گرما کے مد نظر سابقہ کی بنسبت اوقات میں آئی کافی تبدیلی۔ پرانی خصومت، معطل شدہ کلیرا سرپنچ کے شوہر پرساد گوڈ کی جانب سے ماگلور ایم پی ڈی او پر حملہ، محکمہ پولیس میں شکایت درج۔ ریاست تلنگانہ کے ضلعی عدالتوں میں بڑے پیمانے پر ضلعی ججوں کے تبادلے، ہائی کورٹ کی جانب سے ہدایت جاری۔ اب بڑھتی خبروں کی تفصیل کی جانب۔ شہر نظام آباد کی عیدگاہوں میں نماز عید الفطر کے اوقات کار کا اعلان، موسم گرما کے مد نظر صبح کے اولین ساعتوں میں نماز عید کا انعقاد۔ رواں سال عید الفطر کے موقع پر عیدگاہوں میں نماز عید کے اوقات کار کچھ اس طرح: عیدگاہ اہل حدیث دھرم پور ہلز صبح 7 بجے، عیدگاہ قدیم بودھن روڈ صبح 8 بجے، عیدگاہ جدید قلعہ روڈ صبح 8:30 پر، عیدگاہ مدینہ دھرم پور ہلز صبح 9 بجے۔ واضح ہے کہ دن بہ دن بڑھ رہی دھوپ کی حدت کے مد نظر رواں سال صبح کے اولین ساعتوں میں نماز کا اہتمام کیا جائے، ذمہ داروں نے اظہار کیا۔ جمعۃ الوداع کے موقع پر نماز جمعہ میں عوام کی کثیر تعداد نے کی شرکت، وہ ملک کے موجودہ حالات کے لیے کی گئی خصوصی دعائیں، وہ نمدیدہ ہو کر خصوصی الوداع سلام کو ادا کیا گیا مساجد میں۔ آج جمعۃ الوداع یعنی اس ماہ رمضان کا آخری جمعہ، جس کے موقع پر مساجد میں نماز جمعہ کے موقع پر عوام کی کثیر تعداد نے نماز جمعہ بجماعت ادا کی اور بیشتر حضرات نے شہر کے مرکزی مساجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کو ترجیح دی، جس کے سبب شہر کے مرکزی علاقے میں موجود مساجد تنگ دامنی کی شکایت کرتی نظر آئی۔ اس موقع پر مساجد میں خصوصی دعاؤں کا بھی اہتمام عمل میں لایا گیا، جس میں ملک میں امن و امان، بھائی چارگی و نفرت کی فضا کو دور کرنے کے لیے دعائیں کی گئی۔ اسی طرح ملک کی ترقی و کورونا وبا کے مکمل خاتمے و مہنگائی کے خاتمے کے لیے دعائیں کی گئی۔ اسی طرح کئی مساجد میں اس جمعۃ الوداع کے موقع پر خصوصی الوداع سلام بھی نماز جمعہ کے بعد پڑھا گیا، جس میں نمدیدہ ہو کر اس سلام کو عوام نے ادا کیا اور ماہ رمضان کو اپنے اشکبار آنکھوں کے ساتھ الوداع کہا۔ عظمت بڑی ہے کتنی تیرے روزدار کی، روزے کا ذات ہے پروردگار کی، غم میں ہے ڈوبے سارے مسلمان الوداع، لاکھوں سلام تجھ پہ رمضان الوداع، اے مومنوں کے قدرتی مہمان الوداع، لاکھوں سلام تجھ پہ رمضان الوداع۔ اللہ کے فضل کا تو پیغام لایا تھا، برکتوں اور رحمتوں کا تو سامان لایا تھا، ہم عاصیوں کے واسی مہمان الوداع، لاکھوں سلام تجھ پہ رمضان الوداع، اے مومنوں کے قدرتی مہمان الوداع، لاکھوں سلام تجھ پہ رمضان الوداع۔
شہر میں شب قدر کا پرنور منظر، بازار بند، مساجد میں عوام کا ہجوم، عبادتوں کا پرجوش انعقاد، مختلف مقامات پر سحری کا انتظام۔ 2 سال بعد کورونا وبا سے بے خوف ہو کر شب قدر کا پرمسرت ماحول میں انعقاد۔ شب قدر ایک عظیم رات ہے۔ شب قدر ماہ رمضان کی 27ویں تاخیرات کا شہر کی مساجد میں حسب روایت اہتمام عمل میں لایا گیا۔ نماز عشاء کے موقع پر مساجد میں عوام کی کثیر تعداد نے نماز ادا کی۔ اس موقع پر شہر کے تمام مساجد اپنی تنگ دامنی کی شکایت کرتی نظر آئی۔ ہر مساجد میں نماز تراویح میں قرآن پاک کی تکمیلی عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر مسجد انتظامیہ کی جانب سے مساجد کے علماء کرام کی تہنیت پیش کی گئی اور مبارکباد پیش کی گئی۔ اسی طرح شب قدر کے مطابق عوام کو آگاہی دی گئی۔ بازار بھی کافی حد تک بند نظر آئے اور عوام مصروف عبادات رہتے ہوئے شب قدر کا اہتمام کیا۔ اہل خیر حضرات کی جانب سے شہر کے مختلف حصوں میں سحری کا بھی اہتمام عمل میں لایا گیا۔ جمعیت علماء کی جانب سے پہلے مرحلے میں عید پیکج کی تقسیم۔ ریاستی صدر محترم الحاج حافظ پیر شبیر احمد صاحب کی ہدایت پر جمعیت علماء ضلع نظام آباد کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی رمضان المبارک میں عید الفطر کی خوشیوں میں سلم بستیوں کے مسلمانوں اور غربا میں وہ ضرورت مندوں کو شامل کرنے کی نیت سے عید پیکج کی تقسیم عمل میں آئی، جس میں ایک فیملی کو بقدر ضرورت اشیاء خوردنوش، چاول، تیل، سیویاں، شکر، مغزیات و دیگر چیزیں فراہم کی گئی۔ الحمدللہ جمعیت علماء شہر و ضلعی سطح پر مختلف فلاحی و رفاہی خدمات کو جاری رکھے ہوئے اس موقع پر مولانا سید سمیع اللہ صدر جمعیت علماء نے اپنے تمام معاونین کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ اس اہم ترین موقع پر مسلمانان نظام آباد نے اس کار خیر میں حصہ لیا اور جمعیت علماء کے ذمہ داران پر اعتماد کرتے ہوئے مالی تعاون پیش کیا۔ انشاءاللہ عید تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تعاون کرنے والے احباب سے مزید تعاون کی اپیل کی جاتی ہے۔ تمام ذمہ داران مولانا اسماعیل عارفی، مولانا عبدالقیوم شاکر القاسمی، محمد نصیر الدین، محمد افضل الدین، عنایت علی افروز، وسیم احمد خان و دیگر نے معاونین سے شکریہ ادا کرتے ہوئے دعا کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ جمعیت علماء جو ملک و ملت کی سالمیت اور امن و امان کی برقراری کے لیے ملت کے اندر مختلف اعتبار سے رفاہی، فلاحی، سماجی خدمات انجام دیتی آ رہی ہے گزشتہ 100 سال سے، آج الحمدللہ عید الفطر کے مناسبت سے اور رمضان المبارک کی مناسبت سے ریاستی صدر محترم جناب الحاج حافظ پیر شبیر احمد صاحب کی ہدایت اور ایما پر ہر سال عید الفطر سے پہلے سلم بستیوں میں اور ضرورت مند مسلمانوں کے اندر ان کو عید کی خوشیوں میں شامل اور شریک کرنے کی غرض سے جمعیت علماء ضلع نظام آباد ہر سال یہ عید پیکج تقسیم کرتی ہے۔ اس کا یہ پہلا مرحلہ آج شروع ہوا ہے اور پہلے مرحلے کے طور پر الحمدللہ 100 پیکٹ تقسیم کیے جا رہے ہیں اور اس موقع پر ہم اپنی تنظیم اور جماعت کی طرف سے اور تمامی ذمہ داران کی طرف سے اپنے تمام ہی معاونین کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور مزید خواہش کرتے ہیں کہ آپ اپنا تعاون جمعیت علماء پر اعتماد کرتے ہوئے اس کے حوالے کریں۔ انشاءاللہ اس مد کے اندر آپ کی حلال کمائی کی رقم کو خرچ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام ہی معاونین کو جزائے خیر عطا فرمائے اور جن جن لوگوں نے جس اعتبار سے بھی تعاون کیا اور محنتیں کی ہیں اللہ پاک سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مدینہ منورہ میں روزہ اقدس کی زیارت 1 ہفتے تک معطل، فرزندان توحید کی تعداد میں غیر معمولی اضافے کے بعد حکام کا فیصلہ۔ مدینہ منورہ میں رمضان المبارک کے آخری دہ میں معتمرین کی تعداد میں غیر معمولی اضافے کو دیکھتے ہوئے حکام نے روزہ مقدس کی زیارت کو 1 ہفتے تک کے لیے معطل کر دیا ہے۔ 28 اپریل تا 3 میں معتمرین کو روزہ اقدس کی زیارت کی اجازت نہیں رہے گی۔ مسجد نبوی کے امور کی نگرانی کرنے والے ادارے نے یہ اعلان کیا۔ ادارے کا کہنا ہے کہ تاخیراتوں میں عبادت اور تراویح کے لیے فرزندان توحید کی تعداد میں غیر معمولی اضافے کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا۔ رمضان مبارک کے آخری دہ اور عید الفطر کے موقع پر مدینہ منورہ میں معتمرین اور مختلف ممالک سے آنے والے فرزندان توحید کی تعداد میں مزید اضافے کا امکان ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ احتیاطی تدابیر اور عوام کی سہولت کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ رمضان مبارک میں حرمین شریفین میں دنیا بھر سے آنے والے فرزندان توحید کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہو چکا ہے۔ گزشتہ 2 برسوں کے دوران کورونا کی صورتحال کے سبب عمرے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی۔ 2 سال کے وقفے کے بعد عمرے کی بحالی کے نتیجے میں دنیا بھر سے فرزندان توحید عمرہ اور زیارت روزہ مقدس کے لیے سعودی عرب پہنچ رہے ہیں۔ ڈویژن نمبر 58 سینئر کارپوریٹر محمد عبدالقدوس کے ہاتھوں ڈویژن کے عوام میں حکومت کی جانب سے فراہم کردہ رمضان کٹ کی تقسیم۔
आज शहर निजामाबाद के डिवीज़न नंबर 58 सीनियर टीआरएस कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस की क़यादत में डिवीज़न की अवामी हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा रमज़ान किट की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर इस्तिफादा कुननगान ने टीआरएस हुकूमत व मुकामी कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि टीआरएस हुकूमत एक सेकुलर जमात है जिसकी जानिब से गरीब अवाम की हर मौके पर मदद की जा रही है और हर मजहब के त्यौहार पर तोहफों की तकसीम करते हुए इनकी खुशियों में शामिल हो रहे हैं। इसी तरह की हुकूमत मुल्क की किसी दूसरी रियासत में मौजूद नहीं। इस मौके पर इनके हमरा सीनियर कायद मोहम्मद जमील, मोहम्मद फरहान व दीगर मौजूद थे। तेलंगाना गवर्नमेंट की जानिब से हर साल की तरह आज भी 58 डिवीज़न में रमज़ान गिफ्ट तकसीम किए गए हैं और तेलंगाना गवर्नमेंट हर साल की तरह गिफ्ट पैकेट तकसीम करते हैं, उसी तरह आज भी तकसीम किया गया है। मैं केसीआर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ गरीब लोगों की तरफ से, और गरीब लोग भी जो है सो केसीआर साहब को दुआ दे रहे हैं कि हर साल जो है सो उनको गरीब लोगों को कपड़े तकसीम किए जाते हैं और खाना भी खिलाया जाता है मसाजिद में। गवर्नमेंट की तरफ से मैं तहे दिल से केसीआर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। जय तेलंगाना। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संगम की जानिब से शहर के मेयर नीतू किरण की सालगिरह के मौके पर दी गई मुबारकबाद। जिले निजामाबाद के अखिल भारतीय सफाई मजदूर संगम की कौमी सेक्रेटरी मचल श्रीनिवास और रियासती सेक्रेटरी नरेंद्र राजेंद्र ने शहर के मेयर नीतू किरण की सालगिरह के मौके पर मुलाकात करते हुए मुबारकबाद पेश। वो मुस्तकबिल में मज़ीद ताला उहदों पर फाज होकर ताहयात तक खिदमत अंजाम देने की ख्वाहिश की। इस मौके पर इनके साथ जिले निजामाबाद सदर विजय, जिले के जनरल सेक्रेटरी एम चंद्रशेखर, संदीप व साइलू ने शिरकत की। तेलंगाना के इमारतुल अदलिया में खिदमत अंजाम देने वाले जिले जज का तबादला अमल में लाते हुए हाई कोर्ट ने मकतूब जारी किया। जिले निजामाबाद की इमारतुल अदलिया में फर्स्ट एडिशनल जिला जज के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले गौतम प्रसाद को रंगारेड्डी जिले एलबी नगर मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में 8वें एडिशनल जिले जज के तौर पर हाई कोर्ट ने तबादला अमल में लाया। इसी तरह से गौतम प्रसाद के ओहदे पर निजामाबाद फर्स्ट एडिशनल जिले जज के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले बी श्रीनिवास गौड़ को मुंतखब किया गया और इसके अलावा सेकेंड एडिशनल जिले जज के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले पंचाक्षरी को 8वें एडिशनल जिले जज के तौर पर तबादला अमल में लाते हुए मकतूब जारी किया। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने धान की खरीदारी व मिलिंग को मुंतकिली के मुतालिक उमूर पर प्रगति भवन के कलेक्ट्रेट दफ्तर में जिम्मेदार ओहदेदारान से इजलास का इनेकाद अमल में लाया। जिले निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने प्रगति भवन के कलेक्ट्रेट दफ्तर में बरोज़ जुमेरात सापहर धान की खरीदारी व मिलिंग को मुंतकिली करने के मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर जिम्मेदार ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए कहा कि दीगर मुकामात पर कुछ राइस मिलर सिर्फ बारीक धान को ही दरामद करते हुए मोटे किस्म के अनाज से लदी लॉरियों को रोके जाने के ताल्लुक से शिकायतें मौसूल हुई है। लिहाजा तमाम राइस मिलर्स बारीक धान के अलावा मोटे धान को भी यकीनी तौर पर दरामद करके मिलिंग करने की ताकीद की और अगर कोई राइस मिलर्स इससे इनकार करे तो राइस मिलों को मिलिंग की इजाजत न देने के लिए जिम्मेदार ओहदेदारान को हिदायत जारी की। वर्नी मंडल जाकुरा देहात में लिफ्ट इरिगेशन की तामीर अमल में लाने पर अपोजिशन कायदीन को तरक्की हजम न होने का रियासती वज़ीर सेहत व खजाना हरीश राव का खिताब। जिले निजामाबाद वर्नी मंडल के मुकाम पर रियासती वज़ीर सेहत व खजाना हरीश राव दौरा करते हुए रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवासरेड्डी के हमरा वर्नी मंडल के जाकुरा देहात में लिफ्ट इरिगेशन स्कीम का इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि जाकुरा में लिफ्ट इरिगेशन तामीर अमल में लाने पर अपोजिशन कायदीन को तरक्की हजम नहीं हो रही है, इसीलिए हुकूमत तेलंगाना के खिलाफ बनावटी बातों के जरिए अवाम को वरगलाते हुए जहनी दीवालीपन में मुब्तला होने का इजहार किया। इन्होंने मजीद कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में सीएम केसीआर की कामयाब तरीन क़ियादत में किसानों की जानिब से काश्त के अनाज के ज़ख़ीरे की खरीदी अमल में लाने के लिए खरीदारी मराकिज़ का क़याम अमल में लाने के अलावा किसानों को 24 घंटे मुफ्त बरक़ी की सरबराही अमल में लाने पर दीगर मुनफरिद स्कीमात के तहत किसानों को फायदा पहुंचाने का इजहार किया। इवाल जाकौरा लिफ्ट వచ్చిందంటే 44 డిగ్రీల ఎండ మండుతున్నది మొత్తం। ఇంత ఎండల కూడా ఇన్ని వేల మంది వచ్చి మీ ముఖాల్లో ఒక సంతోషం కనబడతా ఉంది। మా కష్టాలు తీరుతాయి, ఇక మాకు నీళ్ళు వస్తాయనే ఆనందం మీ అందరి కళ్ళల్లో కనబడతా ఉంది నాకు। ఎందుకంటే ఇంతకుముందు ఆ కాలువ అంతా ఎడమ చేయి దిక్కు పారుతుండే, కుడి చేయి దిక్కంతా పారకపోతుండే। ఈ పై భాగంలో ఉండే వాళ్ళు 1,00,000 రూపాయలు, 2 లక్షలు, 3 లక్షలు ఖర్చు పెట్టి పైపులేసి కిలోమీటర్ దాకా గుంజుదురు।
ఆ పైపులు వలిగిపోయినా కొద్దీ అతుకుడు గుంజుడు 2 లక్షల పెట్టుబడి పెట్టాల్సిన ఇబ్బంది ఉండే. కానీ ఇక పెట్టుబడి లేదు, పైపులు లేదు, మోటార్లు లేదు, కరెంటు లేదు. జాకోరా లిఫ్టుతో మీ పొలం వాకిట్లోకి నీళ్ళు వస్తున్నాయంటే మీ కళ్ళల్లో ఆనందం కనబడతా ఉంది. మీ కళ్ళల్లో ఆనందం కనబడితే కాంగ్రెస్ వాళ్ళ బీజేపీ వాళ్ళ కళ్ళల్లో మాత్రం కన్నీళ్లు కనబడుతున్నాయి. 1,50,00,000 ఎకరాలు, 1,50,00,000 ఎకరాలు గుంట పడిత లేకుండా 2 పంటల కడుపు నిండా పంట పండిస్తే 1,50,000 కోట్ల రూపాయల విలువ గల పంటను పండించేటువంటి శక్తి తెలంగాణ రైతు దగ్గర ఉంది. అలాంటి యొక్క శక్తిని రైతులకు అందించాలి, 2 పంటలు కడుపు నిండా పంట పండించాలి అనే ఒక మంచి సంకల్పంతో మన ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారి నాయకత్వంలో అప్పటి ఇరిగేషన్ శాఖ మంత్రి హరీష్ రావు గారి ఆధ్వర్యంలో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు అతిపెద్ద ప్రాజెక్టు ప్రపంచంలోనే రూపుదిద్దుకొని సకాలంలో పూర్తి చేయటానికి రాత్రింబగలు ప్రాజెక్టు దగ్గర పండుకొని ఒక పూట తిన్నా తినకపోయినా ఎండైనా వానైనా इस माह की 22 तारीख से अप्रैल 28 तारीख तक मोबाइलाइजेशन ट्रेनिंग का कामयाब इनेकाद कमिश्नर ऑफ पुलिस किया नकाराजू। जिले निजामाबाद कमिश्नरेट के हाथ में मुनाकिदा आर्मर रिजर्व अमले की मोबाइलाइजेशन ट्रेनिंग के अख्तामी प्रोग्राम में बहसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर कमिश्नर ऑफ पुलिस किया नागराजू ने शिरकत करते हुए कहा कि फेज 1 फेज के तहत इस माह की 22 तारीख से अप्रैल की 28 तारीख तक मोबिलाइजेशन ट्रेनिंग का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें फिजिकल एक्सरसाइज, योगा, आर्म्स डल, लाठी डल व हथियारों के मुतालिक शोर बेदारी अमल में लाते हुए फायरिंग प्रैक्टिस, फ्लड क्राफ्ट व दीगर के मुतालिक तमाम तरीन मालूमात फ्राहम की गई। इस प्रोग्राम में डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस वी अरविंद बाबू, एडिशनल डीसीपी एडमिन उषा विश्वनाथ, एडिशनल डीसीपी AR P गिरिराज, एडिशनल डीसीपी ऑपरेशन M नरेंद्र रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। అనేది ఒకటే అన్ని విభాగాలతోని అన్ని విభాగాల కంటే మించి ముందుగా ఉండేదే మన విభాగం. అందులో మన ఆర్మీ ఫోర్స్ ఫస్ట్ ఉంటుంది, తర్వాత ఏపీఎస్పీ, తర్వాత మిగతా అధికారులు వస్తారు. ఎందుకంటే సివిల్ ఫోర్స్తో పాటు మీరు సమానంగా అన్ని డ్యూటీలు చేస్తుంటారు బందోబస్తులో. కాబట్టి ఏది జరిగినా మొదటిగా ఉండేది మనమే. నేను ఈ మధ్యన మంచి అధికారులను చూసి ట్రాఫిక్ కూడా తీసుకున్నాను. ట్రాఫిక్ విభాగానికి చాలా చక్కగా చేస్తున్నారు. అలాగే ఎలాంటి సమస్య ఉన్నా కూడా మీరు పై అధికారులకు తీసుకురండి. నా వంతుగా ఏం చేయాలని చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను. నా పై ఉంటే ఆ రిపోర్ట్ను నా పై అధికారులకు పంపి మీకు ఏ విధంగా సాయం చేయగలుగుతామో ఆలోచించి చేస్తాము. అంతేగాని ఎవరు కూడా बांसवाड़ा शहर में 40 करोड़ रुपए की लागत तामीर होने वाले नर्सिंग कॉलेज से मुताल्लिका राजी पर रियासती वज़ीर सेहत व खजाना हरीश राव ने रखा संग बुनियाद। रियासती वज़ीर सेहत व खजाना हरीश राव के बिरकुर से बांसवाड़ा शहर का दौरा करने के मौके पर 1000 TRS कायदीन ने भारी बाइक रैली का इनेकाद अमल में लाकर शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया। बातजा रियासती वज़ीर सेहत व खजाना हरीश राव ने रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी के हमरा बांसवाड़ा शहर में 40 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाले नर्सिंग कॉलेज से मुताल्लिका राजी पर संग बुनियाद रखा। इस मौके पर इनके साथ रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी भी मौजूद थे। इस प्रोग्राम में मंडल के MPPs, ZPTC, मंडल पार्टी TRS सदर व सेक्रेटरी, AMC चेयरमैन, सरपंच, MPTC सोसाइटी सदर, अवामी नुमाइंदे व दीगर ने शिरकत की। కానీ మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జిల్లా కేంద్రం కాని చోట ఎక్కడన్నా నర్సింగ్ కాలేజీ శాంక్షన్ అయిందంటే అది ఒకే ఒక్కటి బాన్స్వాడ నియోజకవర్గం. ఒకే ఒక్క నియోజకవర్గం బాన్స్వాడ నియోజకవర్గం. 50 కోట్ల రూపాయలతో ఇవాళ బాన్స్వాడలో నర్సింగ్ కాలేజీకి మనం శంకుస్థాపన చేసుకున్నాం. హైదరాబాద్ లో కొన్ని కుక్కలు మొదలుతుంటాయి, కాంగ్రెస్ బీజేపీ కుక్కలు. డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఆడున్నాయి, డబుల్ బెడ్రూమ్లు అడగట్టిండ్రు అంటారు. నేను ఆ కాంగ్రెస్ బీజేపీలో చెప్తున్నా, రండి బాన్స్వాడకు, మీకు ఇల్లు మీకు చూపిస్తా. ఒక్కటి కాదు, 2 కాదు, 6000 ఇండ్లు పూర్తి చేసి ఇళ్లకు తోలిన మహానాయకుడు మా పోలిగాలం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు.
6,000 ఇళ్ళు మాట్లాడితే ఓ బలరాం వేయాలని బట్టగాల్చి మీరు వేయాలని సిద్దిపేటకే ఇల్లు కట్టరు అంటాడు. నేను కట్టేయండి, నేను అంత కొట్టే తిప్పి నేను 2,900 3,000 నేను కడితే నాకంటే డబుల్ ఇల్లు 6,000 మా పోటీలో శ్రీనివాస టెంపుల్ కట్టింది. అది అంటే 6 పిల్లలు వెళ్ళి 4 నడుస్తున్నట్టు నేను. अमरात गांव में कालेश्वरम प्रोजेक्ट की जमीन ज़ेर-ए-आब होने के मुतालिक डर खौफ से खुदकुशी करने वाले बुज्जी भाई के अफराद खानदान से साबिक़ MLC भूपति रेड्डी ने मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। साबिक़ MLC भूपति रेड्डी ने अमरात गांव में कालेश्वरम प्रोजेक्ट की जमीन ज़ेर-ए-आब होने के मुतालिक डर खौफ से खुदकुशी करने वाले बुज्जी भाई के अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए गंगा रेड्डी शेखर गौड को पुरसा दिया। वो इसके अलावा इनके अरकान खानदान को 10,000 रुपये की रकमी इमदाद हवाले की। श्रीकुंडा मंडल के मुकाम पर दीगर मौज़ूआत में बेमौसम बारिश के सबब तबाहशुदा फसलों का ZPTC बाजरेडी जगन ने लिया जायजा। श्रीकुंडा मंडल के मुकाम पर धरपल्ली ZPTC बाजरेडी जगन ने दौरा करते हुए पंडी मड़ुगु चीमनपल्ली डुपिया टांडे में बेमौसम बारिश के सबब तबाहशुदा फसलों का जायजा लेते हुए हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन तौर पर मदद फराहम करने का तयक़ुन दिया। इस मौके पर इनके साथ श्रीकुंडा मंडल रईतु सामन्वय समिति सदर त्रिमल पंडी मड़ुगु सरपंच सरदार भाग्य गंगा नरसैया सरपंच MPTC मुकामी TRS खादिन और दीगर ने शिरकत की। నిజామాబాద్ జిల్లా సిరికొండ మండలం చిమన్పల్లి గ్రామం. మా ఇక్కడ నిన్న కురిసిన వర్షానికి వడగళ్ల వాళ్ళ రూపంలో 6 నెలలు కష్టపడిన పంట చేతికొచ్చే సమయంలో ఒక్కసారిగా ప్రకృతి ప్రళయంతో వడగళ్ల వాన పడి దాదాపు పంట నష్టం జరిగింది. మొత్తం పంట కోసే దశలో ఉన్నప్పుడు వర్షం పడి మొత్తం పంటంతా నాశనమైంది. దీంతో రైతులు ఎంతో పంట చేతికొచ్చే దశలో పంట పోవడంతో చాలా బాధతో ఉన్నారు. नारायणखेड़ में मुनाकिदा इफ्तार पार्टी में जहीराबाद रुकन पार्लियामेंट बीबी पाटिल ने की शिरकत। नारायणखेड़ शहर के रहमान फंक्शन हॉल में मुनाकिदा इफ्तार पार्टी में जहीराबाद रुकन पार्लियामेंट बीबी पाटिल ने शिरकत करते हुए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा रमजान गिफ्ट की मुस्तहिक खवातीन में फ्राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट बीबी पाटिल ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में CM KCR की कामयाब तरीन क़ियादत में तमाम तबका से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को इनके त्यौहारों के मौके पर खुसूसी तोहफ़ात फ्राहम करने का सहरा CM KCR के सर जाने का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ रोशन रेड्डी, वेंकटराम रेड्डी, म्यूनसिपल चेयरमैन, काउंसलर्स, MPP, ZPTC, पार्टी प्रेसिडेंट खादिन व दीगर ने शिरकत की। इंदलवई दही तरक्की कमेटी के ज़ेर निगरानी में अवामी नुमाइंदों ने RTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली बाजरेडी गोवर्धन से मुलाकात की व दीगर तरक्याती कामों के मुतालिका एक मेमोरेंडम किए हवाले। हैदराबाद में रिहाइश पजीर RTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली बाजरेडी गोवर्धन से इंदलवई देहात के सरपंच, MPTC व नायब सरपंच के अलावा VDC चेयरमैन व मेम्बरान के साथ साथ TRS पार्टी प्रेसिडेंट, साबिक़ MPTC व सरपंचों ने मुलाकात करते हुए दीगर तरक्याती कामों के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाने की ख्वाहिश करने पर RTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली बाजरेडी गोवर्धन ने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार किया। ग्रुप 1 प्रीलिम्स के लिए 33 मराकिज़ का क़याम, उम्मीदवारों को 12 सेंटर्स के इंतखाब की सहूलत, मेंस इम्तिहानात हैदराबाद में मुकर्रर करने का इम्कान। तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद पहली मरतबा 503 ग्रुप 1 जायदादों पर तक़र्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। प्रिलिमिनरी और मेंस इम्तिहानात के जरिए तक़र्रुरात किए जाएंगे। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 1 प्रिलिमिनरी इम्तिहानात के लिए रियासत भर में 33 मराकिज़ कायम कर रहे हैं। उम्मीदवार दरख्वास्तें दाखिल करने के दौरान इनमें 12 मराकिज़ का इंतखाब करें, जिसमें कोई एक सेंटर उम्मीदवार को अलॉट किया जाएगा। जहां तक मेंस इम्तिहानात की निकात का मामला है, इसको रियासत के सदर मुकाम हैदराबाद में मुनक़िद करने का इम्कान है। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने वजाहत की है कि सरकारी मुलाजिमीन को ग्रुप 1 इम्तिहानात में शिरकत करने के लिए अपने महकमे के अफसरों से NOC हासिल करना ज़रूरी है। 2 में से दरख्वास्तें कबूल की जाएंगी। दरख्वास्त फ़ीस 200 रुपये मुकर्रर की गई हैं। रिजर्वेशन हासिल करने वाले तलबा के लिए फ़ीस 120 रुपये मुकर्रर की गई हैं। प्रिलिमिनरी इम्तिहान के इनेकाद के बाद फौरी की जाएगी। एतराज़ात कबूल करने के बाद फाइनल की जाएगी। खतई के साथ जवाबी पेपर्स वेबसाइट पर पेश किया जाएगा। प्रिलिमिनरी में क्वालिफाई होने वाले उम्मीदवार मेंस इम्तिहानात के लिए अहल होंगे और OMR शीट्स पर हॉल टिकट नंबर और जवाब तहरीर करते वक्त उम्मीदवारों को एहतियात से काम लेना होगा। अगर कोई गलती होती है तो इस OMR शीट को कबूल नहीं किया जाएगा, लिहाजा उम्मीदवार चौकसी इख्तियार करें। बिचकुंदा मंडल में हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा रमजान किट की इस्तिफादा कुननगान में तकसीम, अवाम ने किया खुशी का इजहार।
बिचकुंडा मंडल मुस्तखिर पर टीआरएस पार्टी सीनियर अखिलती कायद शेख पाशा की क़यामगाह पर रमज़ान मलबूसात की तकसीम अमल में आई। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से गरीब मुस्लिम खानदानों में मलबूसात बतौर तोहफा रमज़ान गिफ्ट टीआरएस पार्टी सीनियर कायद शेख पाशा कोऑप्शन मेंबर जावेद के हाथों तकसीम की गई। अखिलती कायद शेख पाशा ने खिताब करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत तमाम मज़ाहिब का एहतराम करते हुए क्रिसमस, बदकम्मा, रमज़ान, ईदैन पर मलबूसात की तकसीम कर रही है। तेलंगाना हुकूमत गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है। शेख पाशा ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जैसी मिसाली फलाही स्कीमात मुल्क भर में नहीं मिलती। इस इजलास में मस्जिद आबिदीन सदर गुलाम टीआरएस पार्टी, टाउन माइनॉरिटी सदर शेख जाफर, सैयद लायक, नईम, शाकिब खान, शेख अजीम, शादुल के अलावा दीगर मौजूद थे। माकलूर एमपीडीओ श्रीनिवास पर मुअत्तल होने वाले कलेड़ा सरपंच के शौहर प्रसाद गौड़ ने किया हमला। K6 चैनल की जानिब से 3 माह कबल से नशर करदा धांधलियों पर मबनी मामले का जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने रद्द-ए-अमल में देते हुए कलेड़ा सरपंच लावण्या गौड़ को मुअत्तल करके माकलूर एमपीडीओ श्रीनिवास गौड़ को कलेड़ा के स्पेशल ऑफिसर के तौर पर मुंतखब किया गया। लेकिन हमेशा की तरह इस मरतबा खिदमत अंजाम देने के लिए जाने वाले एमपीडीओ श्रीनिवास गौड़ पर सरपंच लावण्या के शौहर प्रसाद गौड़ ने हमला करते हुए टेबल पर मौजूद व्हाइट पेपर व स्टेपलर को एमपीडीओ पर फेंकने के बायस एमपीडीओ की जानिब से पुलिस स्टेशन में शिकायत की गई। मुकामी अवाम के मुताबिक सरपंच के शौहर प्रसाद ने पुरानी खुसूमत दिल में रखकर गैर अखलाकी हरकत करने का इजहार किया। टी श्रीनिवास ఎంపీడీఓ గారు అండ్ ఎంపీఓ గారు మాక్లూరు మండల్ స్పెషల్ ఆఫీసర్గా విధులు నిర్వహిస్తున్న కల్లెడ గ్రామ పంచాయతీ స్పెషల్ ఆఫీసర్గా విధులు నిర్వహిస్తున్న సందర్భంలో అప్రాక్సిమేట్ మధ్యాహ్నం 1 o'clock టైంకి సస్పెండ్ అయిన మాజీ సర్పంచ్ ఆ సర్పంచ్ గారి యొక్క భర్త ప్రసాద్ గౌడ్ అనే వ్యక్తి వచ్చి నన్ను ఇంతకుముందు నువ్వే సస్పెండ్ చేసినావు, నువ్వు సస్పెండ్ చేయించి ఇప్పుడు ఆ చైర్లను కూర్చున్నావు అని చెప్పి దుర్భాషలాడి అతని మీద దాడి చేయడం జరిగింది। ఇమీడియట్గా మాకు ఆయన కంప్లైంట్ చేయగానే కేసు రిజిస్టర్ చేసినాం, అక్యూజ్ని కూడా తీసుకొచ్చినాం, ఫర్దర్గా దర్యాప్తు చేస్తున్నాం, ఫర్దర్గా ఏముంటే అది ఫైనలైజ్ చేస్తాం। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के हम सरखे पर। शब क़दर व जुम्मतुल विदा का मुत्तहदा ज़िले में जोशो क़िदत के साथ एहतिमाम, मसाजिद में रूह परवर मंजर व खुसूसी दुआओं का एहतिमाम। रियासती वज़ीर हरीश राव की ज़िले को आमद, रियासती असम्बली स्पीकर के हमरा बांसवाड़ा में नर्सिंग कॉलेज, लिफ्ट, इरीगेशन व दीगर तरक्याती कामों का किया आगाज। शहर निज़ामाबाद के मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज ईदैन के औक़ात का ऐलान, मौसमी गर्मा के मद्देनजर साबिक़ा की बनिस्बत औक़ात में आई काफ़ी तब्दीली। पुरानी खुसूमत मुअत्तल शुदा कलेड़ा सरपंच के शौहर प्रसाद गौड़ की जानिब से माकलूर एमपीडीओ पर हमला, महकमे पुलिस में शिकायत दर्ज। रियासत तेलंगाना के ज़िलाई अदालतों में बड़े पैमाने पर ज़िले जजों के तबादले, हाई कोर्ट की जानिब से हिदायत जारी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।